آج ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ یہ وہ قصہ ہے جسے قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے خالق نے اسے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پر ایک ہی سورت میں مکمل بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے سورت یوسف۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 32 مرتبہ آیا ہے، اور رسول اللہ ہمارے پیارے آخری نبی، ہمارے دلوں کی جان، جب معراج کی رات تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں تو ارشاد کرتے ہیں، اگر دنیا کے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس میں سے ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خاندان، پس منظر۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی بیوی لیا، اس سے 10 بیٹے ہوئے۔ دوسری بیوی راہیل، اس سے 2 بیٹے ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے خاص محبت تھی۔ یہی محبت دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد کا سبب بنی، اور یہیں سے یوسف علیہ السلام کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے شہر کنعان کے رہائشی تھے۔ آپ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے اس لیے زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، اور ساتھ ہی ہمارے خالق نے یوسف علیہ السلام کو نہایت حسین بنایا تھا۔ انہی دونوں وجوہات کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ مائل رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے بغض اور حسد رکھنے لگے۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا۔ خواب یہ ہے، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورجوں اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ حسد کریں گے۔ ہمارے خالق و مالک تمہیں نبی بنائے گا اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے گا۔ یہ خواب دراصل ان کی زندگی کے مستقبل کی ایک جھلک تھی۔ اس خواب میں ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، سورجوں سے مراد والدہ، اور چاند سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام خود تھے۔ بھائیوں کی سازش اور کنویں کا قصہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں کہا کرتے تھے، ہمارے والد یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں، اگر یوسف کو ختم کر دیا جائے تو والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ یہ بھائی اکثر جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی، اے ہمارے والد محترم، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ چراگاہ میں بھیج دیں تاکہ وہ کھیلنے اور خوش ہونے لگیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے اور تم غافل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم اتنے بھائی ہیں، اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم بیکار ہیں۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ راستے میں وہی بھائی جو محبت کا دعوے کرتے تھے یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے لگے۔ وہ بکریوں والی لاٹھیاں ان پر برسانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم ہم پر برتری حاصل کرو گے؟ ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا کنویں میں ڈال دیں گے۔ یہ کنواں جنگل کے پار کنعان کے علاقے سے باہر تھا۔ وہاں وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کھیلنے کے بہانے اس میں ڈال دیا۔ رات کو عشاء کے وقت روتے ہوئے واپس آئے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض خون میں رنگ کر لے آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا تو غور سے چیک کیا، وہ کسی جگہ سے پھٹی نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کتنا مہربان بھیڑیا تھا کہ یوسف پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے قمیض اتار دی یا قمیض کو کہیں سے پھاڑا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، لیکن بہت تلاش کے بعد بھی جب نہ ملا تو آخرکار فرمایا، یہ تمہارا بنایا ہوا فریب ہے، میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے خالق کی طرف سے آزمائش ہے۔ کنعان کی سرزمین کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کی تھکن اور گرمی سے سب بے حال تھے، اس لیے انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ پانی تلاش کرتا کرتا ایک پرانے کنویں تک جا پہنچا۔ اس نے بڑا سا ڈول کنویں میں ڈالا۔ نیچے حضرت یوسف موجود تھے جو 3 دن سے کنویں میں تھے۔ کھانے کو کچھ نہ تھا مگر پانی موجود تھا، اس لیے پیاس برداشت نہیں کرنی پڑی۔ جیسے ہی ڈول نیچے پہنچا حضرت یوسف اس میں بیٹھ گئے۔ جب ڈول کھینچنے کی کوشش کی گئی تو وہ بہت وزنی لگا۔
काफिले के कई आदमियों ने मिलकर डूल खींचा। जब डूल बाहर आया तो सब हैरान रह गए कि उसमें एक नहायत हसीन जमील बच्चा है। वो खुशी से कहने लगे, अरे ये तो गुलाम है, खुशखबरी हो, हम उसे मिस्र में जाकर बेच देंगे। चंद दिनों के बाद काफिला मिस्र जा पहुंचा। मिस्र का वो बाजार जिसमें गुलामों को फरोख्त किया जाता था, उसमें हजरत यूसुफ को बैठा दिया गया। बड़े बड़े अमीर लोग उनको खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। उन्हीं में से एक मुल्क मिस्र का वजीर खजाना पूतीफार भी था। उसने हजरत यूसुफ को खरीद लिया और अपने महल में ले गया, और अब महल में परवरिश और तरबियत होने लगी। पूतीफार ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इस बच्चे को इज्जत के साथ रखो, हो सकता है ये हमारे काम आए या हम उसे बेटा बना लें। यूं यूसुफ महल में परवान चढ़ने लगे। वहां बड़े बड़े वज़रा और काजी आते थे, फैसले सुनते और करते थे। यूसुफ को हमारे खालिक ने अक्ल व फहम अता फरमाया था, उसलिए वो इल्म, हिकमत और हुस्न में बढ़ते चले गए। जब हजरत यूसुफ जवान हुए तो हमारे खालिक ने उन्हें बेमिसाल हुस्न अता फरमाया। जुलेखा, जो उनकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हो चुकी थी, अक्सर उन पर नजरें जमाए रखती। एक दिन उसने मौका पाकर यूसुफ को अपने कमरे में बुला लिया। उसके कमरे के 7 दरवाजे थे, उसने सबके सब अंदर से बंद कर दिए। फिर यूसुफ से कहा, आओ मेरी तरफ आओ और मेरे साथ गुनाह करो। यूसुफ ने नहायत सुकून और अदब से जवाब दिया, मैं अपने खालिक की पनाह लेता हूँ, मेरा रब ऐसे जुल्म को पसंद नहीं करता, और तेरा शौहर जिसने मुझे इज्जत दी है, मैं उसके साथ खयानत कैसे कर सकता हूँ। जुलेखा ने कहा, अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं। मगर यूसुफ ने बुराई से बचने का अज़्म किया। हमारे खालिक ने उनकी मदद फरमाई और एक एक करके सब दरवाजे खुलने लगे। इस लम्हे एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आई। जो बंदा दिल से गुनाह से बचने की कोशिश करता है, हमारे खालिक उसके लिए मुश्किल रास्ते भी आसान बना देता है। जब यूसुफ आखिरी दरवाजे तक पहुंचे तो वो बंद था। पीछे से जुलेखा दौड़ी और यूसुफ की कमीज को जोर से खींचा। कमीज पीछे से फट गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने पूतीफार खड़ा था। हकीकत खुल गई। जुलेखा ने फौरन इल्जाम लगाया, जिसने तेरी बीवी पर बुरी नजर डाली हो उसे सख्त सजा देनी चाहिए। यूसुफ ने सुकून से कहा, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैं बेकसूर हूं। इसी वक्त हमारे खालिक ने एक मौजिज़ा दिखाया। जुलेखा के खानदान का एक शैरुन खवार बच्चा बोल उठा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो कसूरवार है, और अगर पीछे से फटी है तो वो बेकसूर है और जुलेखा कसूरवार है। सब ने देखा कि कमीज पीछे से फटी थी। यूं सच सब पर जाहिर हो गया। पूतीफार ने जुलेखा को कहा, ये तेरा ही कसूर है, औरतों का मक्र बड़ा सख्त होता है। यूसुफ, तुम इस बात पर पर्दा डालो, और जुलेखा, तुम अपने रब से तौबा करो। महलों में और महल के उर्द गिर्द के इलाके में एक ही बात ज़बान ज़िद आम थी। सब यही कहते थे कि जुलेखा ने अपने गुलाम हजरत यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत यूसुफ ने अल्लाह की मदद से उसे ठुकरा दिया। ये बातें सुनकर जुलेखा को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि इन औरतों को जरूर सबक सिखाना चाहिए, ताकि उन्हें भी अंदाजा हो कि हजरत यूसुफ कैसा हुस्न रखते हैं। चुनाचे जुलेखा ने एक दिन उन औरतों को बड़े एहतिमाम के साथ अपने महल में दावत दी। जब दावत अपने उरूज पर पहुंची तो उसने कहा, तुम सब अपने हाथों में फल और चुहरियां पकड़ लो और फल काटना शुरू करो। इधर औरतें फल काटने लगीं और उधर जुलेखा ने हजरत यूसुफ से कहा, अब तुम उनके सामने से गुजर जाओ। हजरत यूसुफ मजबूर थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, औरतों की निगाहें उन पर जा पड़ें। सब हैरान रह गई। ऐसा हुस्न उन्होंने जिंदगी भर न देखा था। उनकी नजरें ठटक गईं, दिल रुक सा गया, सांस जैसे थम गई, और इसी आलम में उन्होंने अपने ही हाथ काट लिए। फिर बेसाख्ता बोल उठे, ये तो इंसान ही नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। हजरत यूसुफ का दिल इस वक्त बहुत बोझल हो गया। वो अपने रब के हुजूर झुक गए और दुआ की, ए अल्लाह, मैं उन औरतों की चालों और जुलेखा के फितनों से तंग आ गया हूं। मेरे लिए कैद खाना ज्यादा पसंदीदा है, बस तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। हजरत यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। उस वक्त का कैद खाना आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि वो तकरीबन 150 फीट गहरा है। लेकिन यही अंधेरा कैद खाना हजरत यूसुफ की नई आजमाइश का आगाज था। वक्त गुजरने के साथ साथ जेल में हजरत यूसुफ के पास 2 और कैदी आए। ये दोनों बादशाह के खादिम थे। एक बादशाह का साकी था जो उसे शराब पेश करता था, और दूसरा खासामा था जो खाना पकाया करता था। कुछ दिन गुजरे तो दोनों ने ख्वाब देखे। साकी ने देखा कि वो शराब नचोड़ रहा है
और खांसामा ने देखा कि उसके सर पर रोटियों की टुकड़ी रखी है और परिंदे आकर इन रोटियों को खा रहे हैं। उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा, हमने आपको कीद खाने में एक निहायत नेक और मेहरबान इंसान पाया है। आप दूसरों की खिदमत करते हैं और सबके गम भी बांटते हैं। बुराही करम, हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। फिर उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई। ऐ साकी, तुझे बादशाह की खिदमत में दोबारा बहाल कर दिया जाएगा तो दोबारा उसे शराब पिलाएगा, और एक खांसामा, 3 दिन बाद तुझे सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे तेरे सर को नोचेंगे। वक्त गुजरा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा हजरत यूसुफ ने फरमाया था। ये देखकर जेल के कई कैदी हजरत यूसुफ से बेहद मुतासिर हुए। उनकी बातों और उनके अखलाक से दिल बदल गए। बहुत से कैदियों ने अल्लाह की तौहीद को कबूल किया और ऐमान ले आए। जब साकी जेल से जाने लगा तो हजरत यूसुफ ने उससे कहा, बादशाह के पास जाकर मेरा जिक्र करना, बताना कि एक बेगुनाह नौजवान को कैद में डाल दिया गया है। लेकिन अल्लाह को यह पसंद न आया कि एक नबी मखलूक से सफारिश मांगे, इसलिए हजरत यूसुफ को कई बरस और मजीद कीद खाने में रहना पड़ा। दोस्तों जरा सोचिए, सैयदना यूसुफ अल्लाह के बरगजीदा नबी हैं, हुस्न के एतबार से भी सबसे ज्यादा हसीन हैं, लेकिन उसके बावजूद आजमाइशों ने उनका साथ न छोड़ा और उन्होंने भी सब्र का दामन कभी न छोड़ा। सईदना यूसुफ कैद खानों के अंधेरों में और तंगो तारीक कोठरी में पड़े हैं। चारों तरफ नमी ज़दा दीवारें नजर आ रही हैं, जमीन पर सख्त पत्थर हैं और वो उन्हीं पत्थरों के दरमियान लेटे हुए हैं। वहां एक बरगजीदा नबी जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद हैं। कभी वो झाड़ू हाथ में लिए कैद खाने की सफाई करते हैं, कभी उनके पाकीज़ा वजूद पर कोड़ों की ज़रब लगती है और वो सब्र से बर्दाश्त करते हैं। कभी उन हाथों को जो तस्बीह के लायक थे पत्थरों को काटने के काम में लगाया जाता है। कैदियों की सख्त बातें, पहरेदारों की जड़कियां, भूख और प्यास की शिद्दत, सब कुछ उन पर आजमाया जाता है। लेकिन जब रात उतरती है तो यही यूसुफ थके मांदे जिस्म के बावजूद पथरीली जमीन पर सजदे में गिर जाते हैं। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू कोठड़ी की तारीकी को नूर में बदल देते हैं। वो अपने रब को पुकारते हैं, शुक्र अदा करते हैं और कैदियों के दिलों को अल्लाह की तरफ मुतवजा करते हैं। यूं लगता है जैसे कैद खाना कैद न रहा बल्कि एक मुदरसा बन गया हो, जहां यूसुफ का सब्र, दुआ और तबलीग दिलों को जिंदा कर देती है। यूं ही सब्र और दुआ में दिन गुजरते गए और आखिरकार उनके कैद के साल भी मुकम्मल होने को पहुंचे। अब हमारे खालिक ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए। अब उसके बाद वो वक्त आया जब मिस्र के बादशाह को ख्वाब दिखाया गया। मिस्र के बादशाह ने एक रात अजीब ख्वाब देखा। दरियाए नील अचानक खुश्क हो गया और उसके बीच से 7 मोटी, ताजी और फरबा गायें निकलें। कुछ देर बाद 7 दुबली पतली गायें नमूदार हुईं, जो मोटी गायों को खा गई मगर खुद दुबली रहीं। बादशाह ने फिर देखा कि खेतों में 7 हरी भरी बालियां लहलहा रही हैं और 7 सूखी बालियां उन्हें निगल रही हैं। सुबह हुई तो बादशाह परेशान हुआ। उसने दरबारियों से कहा, अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो तो बताओ। लेकिन कोई भी सही ताबीर न दे सका। सबने कहा, यह सिर्फ परेशान ख्याली है। साकी को कई साल बाद यूसुफ याद आए। इसी वक्त वो कैदी जो पहले यूसुफ के साथ कैद में रहा था बादशाह के पास गया और बोला, मुझे कैद खाने में एक शख्स याद है जो ख्वाब की सही ताबीर बताता है। मुझे इजाज़त दें तो मैं उसके पास जाकर इस ख्वाब की ताबीर पूछ लूं। बादशाह ने इजाज़त दी। वो कैद खाने में गया और यूसुफ से अर्ज किया, ए यूसुफ, बादशाह ने ख्वाब देखा है, दरियाए नील खुश्क हो गया, 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें नमूदार हुईं और खेतों में 7 हरी भरी और 7 सूखी बालियां हैं। बराह करम ताबीर बताएं। यूसुफ ने फरमाया, ये ख्वाब 7 साल खुशहाली और जरखीजी, फिर 7 साल कहट और फिर 1 साल न्यामत की खबर देता है। लोग पहले जमा किया हुआ गल्ला खाएंगे, फिर अल्लाह बारिश बरसाएगा और जमीन सरसब्ज हो जाएगी। दोस्तों जरा सोचें, एक नबी होने के बावजूद 18 या 12 साल बेगनाही में कैद में गुजार दिए गए। कोई जुर्म नहीं था मगर कैद खाने में गुजारे। ये ताबीर बादशाह तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। फौरन यूसुफ को बुलाया गया, लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरा दामन साफ ना हो। इन औरतों से पूछा जाए जिन्होंने इल्जाम लगाया था। औरतों ने अकरार किया, यूसुफ पाक और नेक हैं, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। जुलेखा ने भी कहा, मैंने उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल सच्चे और नेक हैं। बादशाह ने यूसुफ को मिस्र के खजानों का नगरान और वजीर खुराक बना दिया ताकि कहत के लिए इंतजाम किया जा सके। यूं अल्लाह ने यूसुफ को कैद खाने से निकालकर इज्जत और इक्तदार की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फरावानी के सालों में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों को नसीहत की थी कि खूब मेहनत करो, जमीन में बीज डालो और गल्ला जमा करो। चनाचे खीतियां हुई,
अनाज कटा और गोदाम भर दिए गए। देखते ही देखते खुशहाली के साल गुजर गए और वो वक्त आ गया जिसका जिक्र पहले ही किया गया था। कहत और खुश्क साली के साल शुरू हुए। ये कहत सिर्फ मिस्र में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गया। उन्हीं दिनों कनान से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला लेने मिस्र पहुंचे। आपने पहली नज़र में उनको पहचान लिया मगर वो न पहचान सके। आपने उनको गल्ला दिया और फरमाया, तुम्हारा एक भाई और है, आइंदा उसे भी साथ लाना वरना गल्ला नहीं मिलेगा। वापस जाकर भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अबाजान, अजीज मिस्र ने शर्त लगाई है कि बिन्यामीन को साथ लाए बगैर गल्ला नहीं मिलेगा, और देख लीजिए उसने तो हमारे पैसे भी वापस कर दिए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मरतबा यूसुफ के मामले में तुम पर भरोसा कर चुका हूं, दोबारा कैसे करूं? लेकिन अगर तुम लोग अल्लाह के नाम का अहद करो तो मैं बिन्यामीन को भेज सकता हूं। चनाचे भाइयों ने अल्लाह के नाम का अहद किया और बिन्यामीन उनके साथ रवाना हुआ। जब ये दोबारा मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को करीब बैठाया और आहिस्ता से फरमाया, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, मगर ये राज अभी जाहिर न करना। अल्लाह के हुक्म से आजमाइश रखी गई। बिन्यामीन की बोरी में है शाही प्याला रखवा दिया गया। जब तलाशी हुई तो प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला। भाइयों ने कहा, हमारा बाप बूढ़ा है, उसकी जगह हमें रोक लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जालिम नहीं हो सकते, जिसके पास सामान मिला है उसी को रोकेंगे। भाई सख्त परेशान हो गए। सबसे बड़े भाई यहूदा ने कहा, मैं वालिद के पास वापस नहीं जाऊंगा, यही ठहरूंगा। बाकी भाई वापस गए और याकूब अलैहिस्सलाम को सारा हाल सुनाया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को याद करके इतना रोए कि आंखों की रोशनी जाती रही, मगर सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। फरमाया, मैं अपने गम और दुख का शिकवा अल्लाह ही से करता हूँ। जाओ यूसुफ और बिन्यामीन को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। दोस्तों और भाइयों, आप जरा गौर करें, एक बाप की मोहब्बत अपने बेटे के लिए कितनी गहरी होती है। सैयदुना याकूब की मोहब्बत यूसुफ के लिए ऐसी थी कि आंखें अश्कों से भर गईं, यहाँ तक कि रोशनी तक जाती रही। और यही मोहब्बत बिन्यामीन के साथ भी थी, क्योंकि बिन्यामीन में याकूब को यूसुफ की झलक दिखाई देती थी। लेकिन अल्लाह ने एक राज रखा, बिन्यामीन को भी याकूब से जदा कर दिया। क्यों? ताकि याकूब के दिल को यह पैगाम दिया जाए कि कोई भी मोहब्बत, चाहे वो औलाद की हो, चाहे वो दिल के टुकड़े की हो, अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब नहीं होनी चाहिए। याकूब ने रोते रोते अपनी बीनाई खो दी और उधर जुलेखा रोते रोते अपनी जवानी से बढ़ापे में दाखिल हो गई। ये है इश्क की हकीकत कि कभी ये इंसान को जला देता है, कभी उसको राख बना देता है। जुलेखा के दिल में यूसुफ की मोहब्बत ने ऐसा तूफान बरपा किया कि उसकी जिंदगी का सुकून छिन गया। ये इश्कून इंसान को तड़पाता है, रातों की नींदें ले लेता है। मगर यूसुफ ने किया, यूसुफ ने अल्लाह की रिजा को चाहा, अल्लाह की मोहब्बत को चाहा। और यही असल सबक है कि दुनिया का इश्क इंसान को तोड़ देता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बना देती है। जब भाई तीसरी मर्तबा मिस्र पहुंचे और आजिज़ी की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया क्या था? वो हैरान हुए और बोले, क्या आप ही यूसुफ हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया है। भाई शर्मंदा हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, फिर सबको लेकर मिस्र आ जाना। ये वही कमीज थी जिसे मुख्तलिफ मौके पर आजमाइश का जरिया बनाया गया था। यही कुर्ता था जो भाइयों ने खून में रंग कर वालिद को दिखाया। यही कुर्ता था जो जुलीखा के हाथों से पीछे से फाड़ा गया, और यही कुर्ता अब नजात और वालिद की बिनाई की बहाली का जरिया बना। उसमें अल्लाह की गहरी हिकमत थी कि जिस कपड़े को माजी में गम और आजमाइश का सबब बनाया गया, वही आगे चलकर खुशी और राहत का जरिया बना। जब ये कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया तो बिनाई वापस आ गई। फिर सब घर वाले मिस्र पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद को तख्त पर बैठाया। भाइयों और वालिदैन ने सजदा किया। आपने फरमाया, अब्बाजान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। यूं सालों का बछड़ना खत्म हुआ और सब्र का फल खुशी की सूरत में मिला। दोस्तों, इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में सब्र करने वाला आखिरकार कामयाब होता है, और जो अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करे उसे दिल का सुकून मिलता है। आपको इस वाक़ये से क्या सबक मिला, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हो सकता है किसी का दिल बदल जाए, जिंदगी सुधर जाए और उसे फ़ायदा पहुंचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।